Good morning, students. Today we are here for your classes, online classes. Today we'll start the first chapter of 10th class CBSE. The name of the first chapter is A Triumph of Surgery. As I mentioned on plywood that the chapter number first is A Triumph of Surgery. The book name is Footprints Without Feet. बिना पदचिन्हों के निशान. Exactly in 10th class in CBSE board examination, both the book carry 30 marks, and out of this 30 mark, Footprint Without Feet has its own marks. The same is given in syllabus of your board examination. You can check out there. So right now we are having your book Footprint Without Feet with chapter number first, A Triumph of Surgery. Let's begin now. I'm going to have the translation of chapter number first in front of you with the help of these online classes. The name of the chapter is A Triumph of Surgery. But before you start this chapter or write the answers of this answer of the chapter of the question after translation by me, just go through with the chapter again and write down the difficult words on the first page. After mentioning the title of the chapter, like the glossaries are given here, write the name of chapter and glossary, like difficult words are given at the last of the chapter. Just mention the glossaries first and go through with your question answer, as the same will be suggested by me after the completion of chapter. So your book name is Footprints Without Feet, chapter number first, A Triumph of Surgery, Shalya Chikitsa Ki Vijay. So let's review chapter with the translation, students. So your chapter number first is A Triumph of Surgery. It is A Triumph of Surgery by James Herriot. The name of the writer is James Herriot. The name of the writer is James Herriot, and the chapter number first is A Triumph of Surgery. Let's review chapter. A Triumph of Surgery means Shalya Chikitsa Ki Vijay. Shalya Chikitsa means एक medication है, एक operation है, उसकी विजय. So let's review story. Introduction first. Tricky, a small dog. In this story, a Tricky, a small dog. एक Tricky है, बहुत छोटा सा dog है, कुत्ता है. Is pampered and overfed by his rich mistress. उसका पालन पोषण किया जाता है. Pampered means पालन पोषण किया जाना, उसे पालना पोषना. Tricky, the name of the dog in this chapter is Tricky. The name of the dog in this chapter is Tricky. Tricky, a small dog. Tricky बहुत छोटा सा dog है. Is pampered and overfed by his rich mistress. उसका जो है उसकी रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मालकिन द्वारा जो है पालन पोषण किया जाता है और उसे बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है. द मीनिंग ऑफ ओवरफेड इज़ खिलाया पिलाया जाना. ही फॉल सीरियसली इल, वह बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी मिस्ट्रेस, उसकी जो ऑनर है, ट्रिकी अ डॉग, उसका जो डॉग है उसकी जो ऑनर है, उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन है, कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन, एक जानवरों के डॉक्टर से जो है सलाह मशवरा करती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है. डज द डॉग रिकवर, और क्या डॉग जिसका नाम ट्रिकी है इस चैप्टर में, क्या वो रिकवर हो जाता है, क्या वो ठीक हो जाता है. यहाँ पर वील हैव द ट्रांसलेशन, वील हैव द स्टोरी ऑफ अबाउट ट्रिकी एंड मिसेस पंफ्रे, द नेम ऑफ हिज मिस्ट्रेस. लेट्स से दीज लाइन्स अगेन सो दैट यू विल कैच द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी वेरी वेल. ट्रिकी अ स्मॉल डॉग. ट्रिकी जो एक छोटा सा डॉग है, ट्रिकी छोटा सा डॉग है. इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस, उसका जो है पालन पोषण किया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के द्वारा. ही फॉल्स सीरियसली इल, वह बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो मालकिन है, उसकी जो ऑनर है, एक वेटरनरी सर्जन, एक शल्य चिकित्सा के जानवरों के डॉक्टर से जो है कंसल्ट करती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है. डज द डॉक्टर रिकवर, डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग रिकवर हो जाता है. वील हैव द स्टोरी अबाउट ट्रिकी, ओके, डॉक्टर एंड मिसेस पंफ्रे. सो लेट्स हैव अ स्टोरी. बिफोर द चैप्टर इन दिस बुक 3 क्वेश्चंस आर गिवन. So just read the questions, have you answer. The question number first is, why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? कि Mrs. Pumphrey जो है, the name of the owner of dog, the name of the owner of the dog. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky?
कि मिसेस पंफ्रे जो है ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ गिवन ऑन द फर्स्ट पेज, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, और उसकी हेल्प करने के लिए वो क्या करती है, और उसकी हेल्प करने के लिए वह करती क्या है। इज शी वाइस इन दिस, क्या वे इस मामले में काफ़ी वाइस है, क्या बुद्धिमान है। वो डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आई किसको रेफर करता है, इस कहानी में द आई, मीनिंग ऑफ आई इज व्हाट एग्जैक्टली, इस स्टोरी में आई से क्या मतलब है। तो एक्चुअली आई रेफर्स टू द राइटर एंड द नेम ऑफ द राइटर इज जेम्स हैरियट, who will play the role of doctor in this chapter, who will play the role of veterinary surgeon in this chapter. Okay, so who does I refer to in this story? इस story में जहाँ कहीं भी I आपका आएगा, you have to mention the name of the writer, and he is none other than Mr. Harriot, James Harriot. So let's have a story. Before this, just wait for a moment. So students, let's have a chapter. I was really worried about Tricky this time. इस समय जो है मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ही चिंतित था। I was really worried about, कि मैं वास्तव में चिंतित था about ट्रिकी के बारे में this time, इस समय, इस बार जो है इस समय मैं ट्रिकी के बारे में सच में चिंतित था, really मैं worried था। I had pulled up, I stand for the writer and the name of the writer is Mr. Harriot, James Harriot. I was really worried about Tricky this time. इस समय जो इस बार मैं ट्रिकी के बारे में सच में जो है चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. I had pulled up my car. मैंने अपनी कार निकाली थी। I was really worried about Tricky this time. This time इस समय मैं ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी एक्चुअली इज द नेम ऑफ डॉग, उसके बारे में मैं सच में जो है चिंतित था। I had pulled up my car. मैंने अपनी कार निकाली थी। When I saw him in the street with his mistress. जब मैंने ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ, उसकी मालकिन के साथ गली में देखा था। And I was shocked at his appearance. और मैं उसकी अपीयरेंस पर, और मैं उसके स्वरूप पर, उसकी जो जिस तरह से वो दिखाई दे रहा था उस पर काफ़ी शौक था, काफ़ी मुझे शौक लगा था, काफ़ी आश्चर्य हुआ था। he had become hugely fat. ट्रिकी जो डॉग है बहुत ही फैट हो गया था। जब मैंने उसे गली में मिस्ट्रेस पंफ्रे के साथ देखा, मालकिन के साथ देखा था, कुत्ते की मालकिन के साथ, तो मैं काफ़ी चिंतित हो गया था। वह काफ़ी ह्यूजली फैट हो गया था, बहुत ही मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, एक फूले हुए मांस की तरह बहुत ही फैटी हो गया था। विथ अ लैग एट ईच कॉर्नर, जिसके पाँव जो है हर कोने पे लटक रहे थे, बहुत ही मोटा हो गया था, बहुत ही फैटी हो गया था ट्रिकी। हिज आइज, उसकी आंखें, ट्रिकी की आंखें ब्लड शॉट, काफ़ी खूनी थी, रेड कलर की थी, लाल रंग की हो गई थी। एंड रूमी, और नम थी। कैसी थी? नम थी, काफ़ी लेजी दिखाई दे रहा था, काफ़ी नम थी उसकी आंखें। स्टेयर स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल सामने देख रही थी उसकी आंखें बिल्कुल सामने देख रही थी। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और उसकी टंग जो है, उसकी जो जीभ है, उसके जोस से, उसके जबड़ों से जो है लटक रही थी। बुरी हालत में था ट्रिकी। मिसिस पंफ्रे हैस्टिन टू एक्सप्लेन, और हैस्टिन का मतलब होता है हिचकिचाना। मिसिस पंफ्रे इज द नेम ऑफ द ऑनर, इज द नेम ऑफ द मिस्ट्रेस ऑफ द डॉग ट्रिकी। मिसिस पंफ्रे हैस्टिन टू एक्सप्लेन, मिसिस पंफ्रे जो है एक्सप्लेन करने में काफ़ी हैस्टिन हुई, काफ़ी हिचकिचाई, बता नहीं पा रही थी अपने ट्रिकी डॉग की सिचुएशन, हालत के बारे में, कंडीशन के बारे में। मिसिस पंफ्रे हैस्टिन टू एक्सप्लेन, मिसिस पंफ्रे जो है हैस्टिन किया, काफ़ी हिचकिचाई एक्सप्लेन करने बताने में। कहा ही वॉज सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट ही वॉज सो लिस्टलेस, वह काफ़ी लिस्टलेस था, काफ़ी थका हुआ था। मिस्टर हैरियट इज द नेम ऑफ डॉक्टर, एंड एक्चुअली ही इज the writer of a chapter, A Triumph of Surgery, शल्य चिकित्सा के विषय। Mr. Harriot, as I have mentioned you before, Mr. Harriot, he seemed to have no energy. ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है। इस डॉग में, इस कुत्ते में जिसका नाम है ट्रिकी, लगता है उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition. मैंने सोचा कि ज़रूर अवश्य ये malnutrition से ग्रसित है। And the meaning of malnutrition का मतलब, the meaning of malnutrition कुपोषण, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, प्रॉपर डाइट ना मिलना, या माल न्यूट्रिशन होना। कि मुझे लगा प्रॉपर, डेफिनेटली ये माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से जो है फिलहाल ग्रसित है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन,
आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कि ज़रूर जो है ये माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से ग्रसित है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. तो इसलिए मैं का मतलब यहाँ पर कौन है? मिसेस पंफरे. यहाँ पर मिसेस पंफरे बात कर रही, बिकॉज द प्रोनाउन यूज फॉर मिसेस पंफरे, द कन्वर्सेशन गोइंग जस्ट आफ्टर मिसेस पंफरे. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास. तो इसी वजह से मैं जो बिटवीन मील्स, खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा दे रही थी. मुझे लगा कि यह है माल न्यूट्रिशन से ग्रसित, तो मैं इसे कुछ एक्स्ट्रा दे रही थी टू बिल्ड हिम अप, इसे बिल्ड हिम करने के लिए, इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. सम माल्ट, मैंने दिया कुछ इसे खाने के बीच में. मैंने जो है ट्रिगर कुछ दिया खाने के बीच में. क्या दिया? माल्ट. माल्ट का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ माल्ट इज जो वाला जो मिल्क होता है ना, ऐसा मिल्क जिसमें जो वाला मिल्क होता है. जो इज द नेम ऑफ बेसिकली पैडी, एक खाद्यान्न का नाम है, एक धान का नाम है. द पैडी फील्ड बेसिकली जो होता है बेसिकली उसका जो मिल्क है मैंने उसे दिया. एंड कॉड लिवर ऑयल, और मैंने फिश लिवर ऑयल दिया. कौन सा ऑयल दिया? फिश लिवर ऑयल. कॉड मीन्स टू से अ काइंड ऑफ फिश. तो फिश लिवर ऑयल मैंने खाने के बीच में दिया उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. ये मुझे लगा था कि एक माल न्यूट्रिशन से सफरिंग कर रहा है. एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और मैंने हॉर्लिक्स का बाउल दिया. बाउल का मतलब इस सब बाउल मीन्स कटोरा जो होता है. मैंने हॉर्लिक्स का दूध में मिल्क में डाल के दिया होगा, मैंने इसे हॉर्लिक्स भी दिया एट नाइट, रात्रि के समय, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सही से सो जाए, ताकि उसे निद्रा अच्छी प्रकार से आए, ताकि वो सही सोए. नथिंग मच रियली, और सच में इसके अलावा बहुत और कुछ मैंने नहीं दिया. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या आपने, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि उसकी स्वीट्स की जो थिंग्स हैं, उसकी मिठाइयों की जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, क्या उसमें आपने कटौती की है क्या? ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ी बहुत तो की थी. Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि वह काफ़ी वीक था. I had to relent, और मुझे थोड़ी बहुत रिलेंट देना पड़ा, थोड़ी ढील देनी पड़ी. तो मिसेस पंफरे से सवाल किया मिस्टर हैरियट ने, जो कि डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या आपने ट्रिकी की मिठाइयों की चीज़ों में कुछ कटौती की थी क्या? Oh, I did for a bit. हाँ मैंने थोड़ा बहुत तो किया था. But he seemed to be so weak. लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वह काफ़ी कमज़ोर था. मुझे काफ़ी कमज़ोर लगा. ट्रिकी, किसका ट्रिकी? मेरा ट्रिकी. मेरा मतलब मिसेस पंफरे बोल रही है, मुझे ट्रिकी काफ़ी कमज़ोर प्रतीत हुआ था. I had to relent, मुझे रिलेंट करना पड़ा, मुझे थोड़ी छूट देनी पड़ी, मतलब थोड़ी बहुत मिठाई मुझे खिलानी पड़ी. पहले ऑलरेडी वो फैटिक हो रहा है, और वो मिसेस पंफरे जो उसके बारे में चिंता करने के बजाय बहुत रिलेंट कर रही है, छूट दे रही है एडवाइस मिलने के बाद भी. He does love cream cakes. He does love cream cakes and chocolates so. और ट्रिकी को जो है, उसने बताया मिसेस पंफरे ने कि ट्रिकी को जो है क्रीम के जो केक्स हैं और चॉकलेट्स हैं बहुत ही पसंद है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं क्रीम के केक्स और चॉकलेट्स. सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसे मना नहीं कर सकी. आई कांट बियर, मैं सहन नहीं कर सकती, टू रिफ्यूज हिम, उसे मना करने में, मतलब उसे मैं मना कर सकूँ, इस बात को मैं सहन नहीं कर सकती. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैंने छोटे से डॉग की तरफ, उस छोटे से कुत्ते की तरफ फिर से एक बार देखा. Actually, the using of pronoun I in this story is depend upon the conversation going on. Okay, if the basic dialogue is of Mrs. Pumphrey, the pronoun is used just after that is of Mrs. Pumphrey, and depend upon the basically understanding of the story, you will easily catch it. Don't worry. So I looked down again at the little dog. मैंने little dog की तरफ, छोटे से कुत्ते की तरफ फिर से एक बार देखा. That was the trouble. यही तो प्रॉब्लम थी, यही तो परेशानी थी. Tricky's only fault was greed. ट्रिकी की सबसे बड़ा फॉल्ट, सबसे बड़ा उसका कमी जो था, वो था उसका लालच. ट्रिकी की सबसे बड़ी कमी थी उसका लालच, उसकी ग्रीड. He had never been known to refuse food. अरे खाने को मना करने को लेकर के वह कभी जाना ही नहीं जाता था. He had never been known, वह कभी नहीं पहचाना गया था, कभी नहीं जाना गया था. to refuse food, खाने को इनकार करने के लिए, मतलब ट्रिकी जो है कभी खाने से मना करता ही नहीं था. सबसे बड़ी ट्रबल, सबसे बड़ी परेशानी तो ट्रिकी द डॉग के साथ यही थी. He would tackle a meal, और tackle, the meaning of tackle is लेना,
प्राप्त करना, ओके। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और दिन के किसी भी समय, किसी भी आवर में, नाइट रात्रि के किसी भी समय में वो फूड को टैकल ले लेता था, प्राप्त कर लेता था, क्योंकि वो खाने को मना नहीं करता था। ट्रिकी द डॉग, दैट्स व्हाई ही वाज सो फैटी, ही वाज सो फैटी। एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स, और मैं सारी बातों के बारे में चिंतित था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, और मुझे उन सारी बातों के बारे में चिंता थी, वंडर था, आश्चर्य था, जो मिसेस पंफ्रे ने मेंशन नहीं किया था, बताया नहीं था। And I wondered about all the things, और मुझे सारी बातों के बारे में चिंता थी, वंडर था, all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, जो मिसेस पंफ्रे ने बताया नहीं था, मिसेस पंफ्रे ने बताया नहीं था, उन सभी बातों के बारे में मुझे चिंता थी। I thought so. Are you giving him plenty of exercise? Actually, I asked Mrs. Pumphrey, मैंने पूछा मिसेस पंफ्रे से, Are you? It's a Pumphrey. The pronunciation of the given word is Mrs. Pumphrey, Mrs. Pumphrey, Mr. Harriet, okay? Are you giving him plenty of exercise? क्या आप इसे plenty of exercise करवा रही हैं क्या? क्या इसे पर्याप्त मात्रा में आप व्यायाम करवा रही हैं क्या? मैंने पूछा मिसेस पंफ्रे से, क्या आप इसे पर्याप्त मात्रा में, इस डॉग को जो है, इस ट्रिकी को पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करवा रही हैं क्या? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, हाँ वो मेरे साथ थोड़ा चल लेता है, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, बट लेकिन, हाँ वो मेरे साथ थोड़ा चल लेता है। वेल अच्छा, हाँ, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, कि वो मेरे साथ थोड़ा चल लेता है, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, बट Hodgkin, another character of the story, Hodgkin, Mrs. Pumphrey, Mr. Harriet, Tricky, and then now Hodgkin. अब वहाँ पे जवाब दिया, well हाँ, he has his little walks with me, as you can see, कि जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ थोड़ा बहुत चल लेता है, but Hodgkin the gardener, okay, who is Hodgkin? Hodgkin the gardener, but the Hodgkin the gardener has been down with lumbago, लेकिन जो हॉजकिन गार्डनर है उसे लम्बैगो हो गया, लम्बैगो मतलब मसल पेन हो गया है। द गार्डनर, हमारा माली जो है, माली, ओके, माली, जो हॉजकिन नाम है उसका, माली का, गार्डनर का, तो गार्डनर जो है नाम है उसका हॉजकिन, हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, उसे लम्बैगो हो गया है। एग्जैक्टली वो लम्बैगो से ग्रसित है, उसे मसल पेन हो गया है। क्या हो गया? मसल पेन हो गया है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, परिणाम स्वरूप रिंग थ्रोइंग का, रिंग इज द नेम ऑफ बेसिकली प्लास्टिक का रिंग होता है जो फेंकते हैं, कुत्ता डॉगी लेकर आता है, फिर छोड़ता है, फिर लेकर आता है, तो वो गेम नहीं चल रहा है इन दिनों, बिकॉज जो गार्डनर है हमारा, जो खेलता है उसके साथ में, उसे लम्बैगो है, उसे मसल पेन है, तो इन दिनों जो रिंग थ्रोइंग का गेम, रिंग को फेंकने वाला गेम जो है नहीं चल रहा है। ओके, लेट्स अभी नाउ द नेक्स्ट पेज। I try to sound serve. I stand for Mr. Harriet. I try to sound serve. मैंने जो है कठोर होने की कोशिश की, मैंने जो है सख्त होने की कोशिश की, भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। So being a doctor, I should give the kind of advice that can heal basically the patient, and the patient is Tricky, the dog. I try to sound serve. मैंने सर्व होने की कोशिश की, सर्व मीन टू से कठोर, मैंने सख्त होने की कोशिश की। Now I really mean this. और मीन का मतलब होता है गंभीर होना। दिस स्टैंड फॉर इस मामले को लेकर के। अब मैं इस मामले को लेकर थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि मुझे लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मैंने जो है थोड़ा गंभीरता अपनाई, मैं गंभीर हो गया। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप अभी जो है इसके खाने में कटौती नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाती हैं, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, कि वह सच में जो है बीमार हो जाएगा। सच में क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा, इल हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को मजबूत करना चाहिए। मिसेस पंफ्रे से कहा मिस्टर हैरियट ने कि आपको अपने दिल को मजबूत करना चाहिए, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट करवानी चाहिए, उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर कीप रखना चाहिए, मतलब उसे जितना खाना खाना चाहिए उतना ही खिलाना चाहिए। आपको थोड़ा अपना दिल को मजबूत करना चाहिए। द काइंड ऑफ एडवाइस बेसिकली गिवन बाय मिस्टर हैरियट टू मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे wrung her hands, और ये बात सुनने के बाद मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथों को, मिसेस पंफ्रे wrung her hands like in this way, बड़ा गुस्सा सा आ गया उसको। ये किस तरह की एडवाइस मिस्टर हैरियट मुझे दे रहे हैं, मेरे ट्रिकी को लेकर के, वो भी खाने की बात को लेकर के, बड़ा और लगा।
तो आप सुने यहाँ पर, तो रंग किया। मिसेस पंफरे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफरे ने अपने हाथों को रंग किया, इस तरह थोड़ा गुस्से में थी वो। मिसेस पंफरे रंग हर हैंड्स, कहा ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी, हाँ मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ मैं श्योर हूँ कि आप सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत ही मुश्किल है ये है। ट्रिकी खाने में कटौती करना, उसे डाइट भी रखना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, और वहाँ से वो निकल पड़ी सड़क की ओर, एज इफ डिटरमाइंड, कि मानो वह डिटरमाइंड थी, कि मानो वह दृढ़ संकल्प थी, टू पुट द न्यू डिजाइन इन टू प्रैक्टिस इमीजिएटली, व्यवहार में तुरंत ही इस नई व्यवस्था को लागू करने को लेकर के, कि मानो बहुत ही डिटरमाइंड थी वो, to put the new regime into practice immediately, व्यवहार में तुरंत ही जो है इस नई व्यवस्था को लागू करने को लेकर के मानो वह बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प थी कि हाँ अब तो मैं नई डाइट व्यवस्था जो है लागू करूँगी मेरे ट्रिकी के लिए, because definitely otherwise he would suffer from the illness. I watched their progress with growing concern. I stand for Mr. Harriot. I watched the writer basically. I watched their progress with growing concern, और मैंने growing concern के साथ, बढ़ती हुई चिंता के साथ जो है उन्हें आगे बढ़ते हुए देखा, उन्हें आगे जाते हुए देखा, सड़क की ओर आगे बढ़ते हुए देखा। प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना, मैंने आगे जाते हुए देखा चिंता के साथ। मुझे भी चिंता हुई, एज ए डॉक्टर मुझे भी चिंता हुई। ट्रिकी वाज टॉटरिंग, और टॉटरिंग का मतलब होता है मंद गति में चलना, धीरे धीरे चलना, डगमगाते हुए चलना। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कॉट, ट्रिकी ने ट्वीड कॉट पहन रखा था। ट्वीड का मतलब होता है ऊनी कॉट। ट्रिकी हैड लॉट्स ऑफ ट्वीड कॉट, ट्रिकी के पास जो है बहुत से ट्वीड कॉट थे, बहुत से ऊनी कोट थे उसके पास, तो उसने ऊनी कोट पहन रखा था, और उस ऊनी कोट को पहने वो डगमगाते हुए मंद गति से चले जा रहा था, बिकॉज बहुत फैटी था ना, बहुत ही मोटा था। ट्रिकी इज द नेम ऑफ डॉग इन दिस स्टोरी, डोंट फॉरगेट दैट, ओके। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी जो अपने लिटिल ट्वीड कोट में, अपने छोटे से ऊनी कोट में जो है, ऊनी कोट में डॉग का अपना खुद का उसका सेटअप है, अपना वार्डरोब से पहना हुआ उसका कपड़ा है। सो ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी जो अपने छोटे से ऊनी कोट में जो है डगमगाते हुए मंद गति में चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास जो है इस तरह के कोट्स का पूरा वार्डरोब है। एंड द वार्डरोब इज अलमारी, जनरली यू से अलमारी है। एग्जैक्टली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अलमारी इज नॉट अलमारी, इट इज अलमायरा। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अलमारी इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अलमारी, जनरली यूज्ड टू से इज अलमायरा वार्डरोब। तो ट्रिकी के पास जो है एक अलमायरा है इस तरह के ट्वीड कोट्स का। द ट्रिकी हैज the Almira, not Almira, the tricky has the Almira, the right pronunciation is Almira, okay. So let's say the line again. He had a whole wardrobe of these coats, और इस डॉग के पास जो है अच्छा खासा वार्डरोब है, अच्छे खासा अलमाइरा है कोट्स का, ओके। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड के मौसम के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश के दिनों के लिए रेन कोट भी है। द रेन कोट एक्चुअली जनरली वी यूज टू वेयर, वो रेन कोट नहीं लंबा वाला, उसके साइज का है भाई, ओके। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रॉपिंग का मतलब होता है झुका हुआ, हार्नेस इज पट्टा, जनरली जो डॉग के पट्टा होता है, रस्सी लगी होती है, हार्नेस पट्टा गले के चारों होता है, उसके बोझ तले वो झुका हुआ चले जा रहा था, स्ट्रगलिंग, संघर्ष करता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरे, आई थॉट मैंने विचार किया था, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरे, कि मिसेस पंफरे से, हर्ड मीन्स सुनना, समाचार प्राप्त करना, कि मिसेस पंफरे से समाचार प्राप्त करने में मुझे अधिक लंबा समय नहीं लगेगा। मैंने सोचा, बिकॉज द ट्रिकी वाज suffering from illness, so definitely the news would come very soon. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मैंने सोचा it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey, कि मिसेस पंफरे से सुनने में मुझे, मतलब उनसे समाचार प्राप्त करने में, अगली न्यूज़ आने मुझे अधिक लंबा समय नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगा, मैंने सोचा था। मतलब मिसेस पंफरे से ट्रिकी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिल जाएगी, ऐसा मैंने सोचा था। द एक्सपेक्टेड कॉल, और जो अनुमानित, जिसके बारे में मैंने सोचा था, उस कॉल के बारे में, केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में आ गई। मिसेस पंफरे का जो कॉल है,
जो संदेश है कुछ ही दिनों में आ गया। मिसिस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसिस पंफ्रे जो है डिस्ट्रॉट थी, चिंतित थी। मिसिस पंफ्रे क्या थी? डिस्ट्रॉट, चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं खा रहा था, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि ट्रिकी ने जो अपनी फेवरेट डिशेज को, अपनी मन पसंदीदा जो व्यंजन थे उनको भी खाने से इनकार कर दिया था। हालत बुरी हो गई थी ट्रिकी की। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि ट्रिकी ने अपनी फेवरेट डिशेज, अपनी मन पसंदीदा डिशेज को जो है खाने से इनकार कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके साथ, और इसके साथ, बिसाइड्स का मतलब एंड बिसाइड्स, बिसाइड्स, बिसाइड्स एक्चुअली इज अ, बिसाइड्स मीन्स के अलावा। The meaning of besides is के अलावा। The meaning of beside, there are two words students, the first one is beside and the next one is besides. The meaning of beside is के साथ, के बगल में, and meaning of besides means के अलावा, okay, के अलावा। It has a positive meaning, मतलब वो तो है ही, इसके अलावा, वो तो है ही, इसके अलावा, okay. Let's say besides. Let's say where we are on the line. Refuse even his favorite dishes, यहाँ तक कि ट्रिकी ने अपनी फेवरेट डिशेज, अपनी मन पसंदीदा व्यंजनों को भी खाने से इनकार कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे बार बार जो है वॉमिटिंग हो रही थी, उसे बार बार वॉमिटिंग हो रही थी, उसे उल्टियाँ आ रही थी। ट्रिकी बहुत ही सीरियस हो गया था, उसे बहुत ही उल्टियाँ आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और उसने अपना पूरा समय जो है, अपना पूरा समय बिताता था रग पर। रग मीन टू से कालीन पर, चटाई पर लेटे लेटे। अपना पूरा समय जो है ट्रिकी कालीन पर, चटाई पर लेटे लेटे बिताता था। पेंटिंग, हाफते हुए, कैसे करते हुए? हाफते हुए। नाउ ही इज रियली सो सीरियस, नाउ ही इज रियली सो सीरियस, बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर है, उसकी हालत बुरी है। ना ही हैज़ बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बहुत ही वॉमिटिंग कर रहा है वो, ओके। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वह नहीं चाहता वॉक पे जाना, और वह वॉक करना भी नहीं चाहता, नहीं चाहता बाहर घूमे। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और वह कुछ भी नहीं करना चाहता, और वह कुछ भी नहीं करना चाहता। कौन? ट्रिकी, उसकी हालत बुरी है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, आई स्टैंड फॉर Mr. Harriot, the doctor, I had made my plans in advance. मैंने एडवांस में ही, पहले से ही अपना प्लान बना लिया था। मैंने पहले से ही अपना प्लान बना लिया था, मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी। The only way was to get Tricky out of the house for a period. The only way, केवल एक ही रास्ता था, केवल एक ही तरीका था, was to get Tricky out of the house for a period, कि कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय अंतराल के लिए ट्रिकी को जो है घर से बाहर निकाला जाए, उसको घर से बाहर ले जाया जाए, उसे घर से बाहर निकाला जाए। एक ही तरीका था उसे ठीक करने का। I suggested that, मैंने सलाह दी, मैंने सजेस्ट किया, that he be hospitalized for about a fortnight, कि एक फोर्टनाइट के लिए, एक पखवाड़े के लिए। एंड द मीनिंग ऑफ फोर्टनाइट इज पखवाड़ा, एंड द मीनिंग ऑफ पखवाड़ा और फोर्टनाइट इज 2 weeks. हाउ मेनी वीक्स आर देयर? 2 weeks. हाउ मेनी वीक्स? 2 weeks. Okay, for 2 weeks I suggested that he be hospitalized for a fortnight, कि उसे एक पखवाड़े के लिए, 2 सप्ताह के लिए जो है to be kept under observation, under observation में रखा जाए। कहाँ रखा जाए स्टूडेंट्स? उसे under observation में रखा जाए, उसे निरीक्षण में, उसे पूरी जांच पड़ताल में, उसे पूरे हॉस्पिटलाइज करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा के रखा जाए। मैंने ऐसी सलाह दी, मैंने ऐसी सलाह दी। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight, कि एक फोर्टनाइट के लिए, एक पखवाड़े के लिए, एक 2 weeks के लिए, 2 सप्ताह के लिए, to be kept under observation, उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए, उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, मतलब निरीक्षण में, आंखों के सामने, जांच पड़ताल के तहत, ओके, रखा जाए। The poor lady almost swooned, the poor lady, और बेचारी वो लेडी मिसेस पंफ्रे इस बात, सारी बातें सुन करके, हॉस्पिटलाइजेशन वाली, ऑब्जर्वेशन वाली, फॉर अ फोर्टनाइट, फॉर 2 weeks, ये सारी बातें सुन के द पुअर लेडी, जो पुअर लेडी थी, जो वह बेचारी महिला थी, नाम था उसका मिसेस पंफ्रे, ऑलमोस्ट सून्ड, लगभग सून्ड हो गई, लगभग सून्ड हो गई। द मीनिंग ऑफ सून्ड इज अनकॉन्शियस, द मीनिंग ऑफ सून्ड इज अनकॉन्शियस, लगभग बेहोश ही हो गई,
लगभग क्या हो गई, बेहोशी हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। शी वॉज श्योर, वह श्योर थी, ही वुड पाइन की वह पाइन होगा। ही स्टैंड फॉर ट्रिकी। Generally we use it pronoun for the animals, but we can use he and she also if we are having stories or poetry. Okay, she was sure he would pine कि वह श्योर थी, मिसेस पंफ्रे इस बात को लेकर श्योर थी, सुनिश्चित थी कि वह ट्रिकी जो है पाइन होगा, दुखी होगा, एंड डाई और मर जाएगा इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वह उसे हर रोज नहीं देख पाता है, हर रोज नहीं देखता है तो वह मर जाएगा। इस बात को लेकर वह श्योर थी कि अगर मेरा डॉग, मेरा ट्रिकी मुझे नहीं देखेगा, रोज मुझे नहीं देखेगा, मुझसे नहीं मिलेगा, तो वह दुखी हो गया और उसका वह मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैं तो अपनी बात पर क्या था, अडिग था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और ये एक मात्र तरीका था उसे बचाने का। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यह एक मात्र जो है तरीका था उसे सेव करने का, उसे बचाने का। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। आई थॉट, मैंने सोचा, आई स्टैंड फॉर मिस्टर हैरियट। ओके, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि मैंने सोचा कि अच्छा होगा बिना देरी करे उसे ले जाया जाए। तो जितना देर करूँगा उतना ही इमोशनल होंगे सारे के सारे लोग, मिसेस पंफ्रे और उसके फैमिली के लोग जो भी हैं, सर्वेंट्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी परेशान होंगे। मैंने सोचा कि बिना देरी करे इसे यहाँ से ले जाया जाए, एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रे वेलिंग, और मैं गया और मेरे पीछे पीछे जो है मिसेस पंफ्रे, वेलिंग का मतलब विलाप कर रही थी, रो रही थी। जब मैं ले जा रहा था मेरे पीछे पीछे मिसेस पंफ्रे जो है विलाप कर रही थी। आई मार्च्ड आउट टू द कार, और मैं कार तक चल के गया। कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket, डॉग तो है लेकिन बहुत छोटा है। ओके, अभी आई कैन से अ वेरी यंग डॉग, बहुत ही जवान कुत्ता है, बहुत छोटा कुत्ता है। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार तक गया चल करके। कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket, छोटे से डॉग को ब्लैंकेट में, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, कंबल में लपेट करके उसे अपने हाथों में ले जा रहा था। मैं गया। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, पूरा का पूरा स्टाफ जो है उठ खड़ा हुआ। मिसेस पंफ्रे हैज़ लॉट्स ऑफ सर्वेंट्स, लॉट्स ऑफ स्टाफ मेंबर्स एट होम, पूरा का पूरा स्टाफ जो है उठ खड़ा हुआ, एंड मेड्स और नौकरानियाँ जो है उठ खड़ी हुई। रस्ट दौड़ी दौड़ी आई, इन एंड आउट, अंदर बाहर, ब्रिंगिंग हिज डे बैड्स, उसके दिन के बिस्तरों को ले जाने के लिए, लाने के लिए, हिज नाइट बेड, उसके रात के बिस्तरों को लाने के लिए, उसके रात के और दिन के बिस्तरों को लाने के लिए सारे के सारे जो स्टाफ हैं, जो मेड्स हैं, नौकरानी हैं, वो उठ खड़ी हुई और यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू किया, अंदर बाहर। फेवरेट कुशन, और उसके फेवरेट कुशन लाने के लिए दिन के बैड्स, नाइट के बैड्स, और उसके फेवरेट कुशन्स, उसके पसंदीदा जो कुशन थे, जो तकिए थे, उन्हें लाने के लिए जो मेड्स, नौकरानी अंदर बाहर यहाँ वहाँ दौड़ने लगी। टॉयज, उसके खिलौने, टिकिए खिलौने, एंड रबर रिंग्स, और उसकी रबर की रिंग, द सेम रिंग that was used by the name of the character, the gardener. You know the name of gardener is Hodgkin. He is Hodgkin. So नाइट के बेड, डे के बेड, फेवरेट क्वेश्चन, टॉयज एंड रबर रिंग्स सब लाने के लिए यहाँ वहाँ सब भागने लगे। ब्रेकफास्ट बाउल, और ब्रेकफास्ट करने के लिए जो बाउल यूज़ में लिया जाता है उसे भी लाया गया। लंच बॉल, लंच का बाउल, सपर बॉल, रात के समय जो बाउल यूज़ करता है ट्रिकी, उसे भी लाया गया। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी कार में सारा स्टफ़, सारा सामान, सारी वस्तुएं, सारी सामग्री नहीं आएगी। मुझे इस बात का एहसास हुआ। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने कार को चलाना शुरू कर दिया। बिकॉज आई थॉट, मैं समझ गया था, आई रियलाइज दैट कि सारा स्टफ़, सारी सामान ट्रिकी के मेरी कार में नहीं आएंगे। मैंने कार को चलाना शुरू किया, चला दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं गया, मिसेस पंफ्रे विद अ डिस्टर्बिंग क्राई, और जैसे ही मैं गया, मिसेस पंफ्रे जो है निराश भरी चीख के साथ चीखी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और खिड़की के अंदर से कुछ आर्मफुल, कुछ मुट्ठी भर के जो कोट्स जो हैं, कोट्स जो ट्रिकी पहनता है, उन्हें विंडो में से फेंक दिया। कोट्स